Hello travelers, how are you all? So if your college life is just started or you have been college, then you might hear a thousand of advices and a dozen of YouTube videos or Instagram videos in which all they talk about is how to start a college in a good way, a fresher guide, in which their content is study hard, attend every classes, make new friends, have a group, blah blah blah. But trust me, this is all just recycled things and they are just copy pasting the things which is already out there in the internet. So that's the reason I'm making this video, because today I want to have a real talk with you guys and share some experience, because as I already passed my BCA, so I know how things unfolds in college. So yeah, sit back, relax, and let's just break some myths. Okay, so the first thing you need to understand is that this is your college life, and you'll see many YouTubers and other influencers saying that you need to study 12 hours a day in your college life because you have so much time to invest in studies and then go to gym, build your body, eat healthy, which is like totally fine. I get it, but you also need to understand this, that this is your time to enjoy also, because once this time is passed, control Z doesn't exist in this world and you can't relive them. So you also need to enjoy. So relax, chill, make friends, go to trips, outings, hang out, and enjoy these 2 or 3 years of your college life also, and make the balance life. I really don't want you to make your college life a jail or a retention center in which you just stay, study hard, focus on your body, and then just pass out and start living your life. And when you look back, you will find yourself lonely, and you feel the regret that you didn't enjoy your college life. Trust me, you will feel that. So this is your college life, enjoy this journey also. Okay, so point number 2 is don't rush yourself into different things and just go with the flow, because in college life you'll see many students in a hurry and they are all just like bro, मुझे दोस्त बनाने हैं, एक बड़ा फ्रेंड सर्कल बनाना है, गर्लफ्रेंड बनानी है, पैसे कमाने हैं या फिर पॉपुलर बनना है. सबके अपने अपने गोल्स होते हैं कॉलेज को लेके कि उन्हें कॉलेज में ये चीज़ें करनी है. बट इफ़ यू आर नॉट अ दैट टाइप ऑफ पर्सन जो उस गोल में फिट हो रहा है, डोंट फोर्स योर सेल्फ जस्ट बिकॉज तुम्हें जेल होना है लोगों के साथ एंड घुलना मिलना है. इट्स नॉट वर्थ इट, ट्रस्ट मी, बिकॉज अगर तुम ये सब करते हो तो डेफिनेटली तुम उन सब के बीच में जेल तो हो पाओगे, बट वो सब फेक फ्रेंड्स होंगे, तुम्हारे रियल फ्रेंड्स नहीं होने वाले, बिकॉज जो तुम्हारी पर्सनैलिटी है उसके अकॉर्डिंग तुम अपने रियल फ्रेंड्स ही बनाओगे ऑब्वियसली. सो डोंट फोर्स योर सेल्फ इन टू दिस टाइप ऑफ थिंग्स बिकॉज it's not gonna matter and people really don't think that much about you, trust me. in college वो भी सब अपना अपना देख रहे हैं, so तुम black sheep नहीं बनने वाले हो. so just relax, sit back and wait for the right time to talk to someone, and whatever you want to do, just wait for the right time, just don't hurry. अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ इस चीज़ पे, तो जब मैं कॉलेज में एंटर हुआ था तो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट वीक था वो मेरा भी ऐसा ही गया था, बिकॉज गजीबो में एक लड़का गिटार लेके खड़ा हुआ है, इधर एक लड़की सॉन्ग्स बजा रही है एंड सब जेल कर रहे हैं, लोगों से सजेस्ट कर रहे हैं सॉन्ग, वो उनके सजेशन सुन रही है, गाने बजा रही है. एंड मैंने भी वो ग्रुप ज्वाइन करा, लोगों के साथ जेल करना शुरू करा, बातें करी, बिकॉज मैं कर लेता हूँ तो इसलिए मैंने करी. बट अगर तुम उस टाइप के नहीं हो तो इट्स टोटली फाइन. बट मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने वो ग्रुप बनाया, मतलब उस ग्रुप का पार्ट बना, मेरे बहुत सारे दोस्त बने, बट इवेंचुअली सेकेंड ईयर तक आते आते मेरे कनेक्शंस कट हो गए एंड मेरे कनेक्शंस कट हो गए लास्ट तक आते आते, एंड मेरे गिनती के 3 या 4 दोस्त बचे. एंड मैं बहुत खुश भी हूँ इस चीज़ को लेकर कि वो स्टार्टिंग में ही कनेक्शन कट हो गए थे फर्स्ट ईयर में ही. सेकंड ईयर में मेरे वो 3-4 ही रियल दोस्त रहे एंड मैं बहुत ही खुश रहा अपने बाकी की जर्नी पे, मुझे बहुत मज़ा आया. सो या डोंट मेक फेक कनेक्शंस जस्ट टू लुक कूल. ओके, जस्ट रिलैक्स एंड मेक गुड कनेक्शंस विद पीपल जो तुम्हारे टाइप के हों, जो तुम्हारी वाइब से मैच करते हो, जिनके साथ तुम्हें जेल करने में मज़ा आता है.
Okay, so tip 3 is start investing early and start saving your money. And it is a very pro tip. I want to tell you that start saving your money and investing those money, even if it means a 10 rupees a day, because by the time you graduate, you'll find yourself more smarter in money management than half of the finance bros out there. Because trust me, money management skill is greater than any flexing of sneakers and type of things. एंड अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने स्टार्टिंग में तो बिल्कुल पैसे सेव करे नहीं थे, एंड मैं चाहता तो कर सकता था. लाइक 10 रुपीज़ अ डे इज़ अ ईजी टास्क, बट आई डिडंट डू इट, एंड मुझे उस चीज़ का रिग्रेट भी है. बट सेकेंड ईयर से आई स्टार्ट डूइंग SIP ऑफ गोल्ड, एंड इट्स 10 रुपीज़ अ डे ओनली, because I can do it 20 rupees a day, 30 rupees a day sometimes, but I really don't want to push myself. बट ऐसा भी नहीं है कि मुझे इन्वेस्ट ही नहीं करना, बिकॉज मुझे रियलाइजेशन हो गई इस चीज़ की कि यार इट्स इम्पॉर्टेंट. सो मैं अभी भी कितने मेरे को 2 या 3 साल हो चुके हैं, अभी भी मेरे 10 रुपीज़ अ डे वाली SIP चल ही रही है गोल्ड में, एंड वो पैसे अभी तक इन्वेस्ट होते जा रहे हैं. सो इट्स अ रियली गुड थिंग टू डू, एंड तुम अभी ये कर भी सकते हो. 10 रुपये बड़ी चीज़ नहीं है दिन की यार. तुम 10 रुपये किस किस चीज़ों में उड़ा देते होगे मुझे भी पता है अच्छे से, तो शुरू करो उसको भी. So point number 4 is studies and attendance in college. So let's talk about studies. So you really don't need to study every day to clear out semester exams, midterm exams, or even university exams. Trust me, you really don't need to study that much in college for the college syllabus. एंड अगर कुछ पढ़ना ही है तुम्हें, लाइक अगर तुम्हारी डेली पढ़ने की आदत है, जो कि बहुत अच्छी बात है, और अगर तुम हफ्ते में 2 बार भी पढ़ सकते हो, तो अपना टाइम फालतू में कॉलेज की पढ़ाई पे वेस्ट मत करना. तुम वो चीज़ सीखना, वो चीज़ पढ़ना जिससे तुम्हारी स्किल्स अपग्रेड होंगी तुम्हारे जॉब क्राइटेरिया में जो फॉल कर रही होगी जो भी चीज़. एंड whatever your interest is, whether it's coding, designing, web development, data analysis, या जो भी तुम्हारी फील्ड का चीज़ होगी, वो चीज़ को पढ़ना अच्छे से. एंड कॉलेज टाइम में अपने जो स्टडी आवर्स हैं वो इस चीज़ में इन्वेस्ट करना, वो तुम्हें सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे. बिकॉज ये जो एग्ज़ाम्स होंगे, मिड टर्म एग्ज़ाम्स, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स, ये तुम 1 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले अगर बैठोगे एंड प्रीवियस ईयर के यूनिवर्सिटी पेपर्स निकाल के उन्हें क्लियर कर लोगे अच्छे से, एंड देन थोड़े बहुत इधर उधर के टॉपिक्स पढ़ लोगे, तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और सब क्लियर आउट हो जाएगा. टेंशन की कोई बात नहीं है. सो ये चीज़ ध्यान रखना स्टडी को लेके. लास्ट पॉइंट था. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अटेंडेंस. तो अटेंडेंस एक ऐसी चीज़ है कॉलेज में जो बहुत ही पेनफुल हो जाती है कभी कभी, बिकॉज शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस कैन लीड टू यू इन अ वेरी बैड सिचुएशन, एंड बहुत बुरा लगता है. सो क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी कॉलेज की तो, बट हाँ तुम सारी क्लासेस अटेंड मत करो, बट हाँ उतनी तो कर लो एटलीस्ट, जिससे तुम क्राइटेरिया मीट कर सको एग्ज़ाम देने का एंड सर्वाइव कर सको अच्छे से. सो अटेंडेंस में बस यही है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलना मेरे को. उतनी क्लास अटेंड करो जिससे तुम्हारी 75% अटेंडेंस बनी रहे, या जो भी तुम्हारे कॉलेज का क्राइटेरिया है, एंड बस दैट्स मोर देन इनफ. और अपना फालतू टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्लासेस में, लेक्चर्स में, बिकॉज वो तुम्हें इतना नहीं सिखा पाएंगे जितना तुम खुद से सीख लोगे. ट्रस्ट मी, अगर वो 1 घंटे का लेक्चर में तुम्हें कोई टॉपिक सिखा रहे हैं, तुम 2 टॉपिक सीख लोगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है. Okay, so the next point is money management, and this is a very important topic to talk about in college life, because money in college goes like this: canteen, snacks, project file, trips, chai, anything you say. One day pocket full and next day broke. यही रहता है, and you need to improve that by recording everything, make budgets of your things, and उस चीज़ से धीरे धीरे तुम सीखोगे तुम्हारा मनी मैनेजमेंट, एंड वो चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है. बिकॉज इफ़ यू डोंट मैनेज योर मनी, यू विल गो ब्रोक इन 15 days or even starting of the month, and then you will say and then you will be like, I'm eating Parle Ji with chai and saying no to trips, and be like, समझ रहे हो ना तुम मैं क्या कहना चाहता हूँ. So start money management. Okay, so the last thing I want to talk about is relationships and dramas.
Okay, so let's just first be honest that college is equals to crushes, relationship, dramas, and whatnot. And it's fun, I get it, but don't make it your full time career in college. Uh, Focus on yourself because trust me, these relationships and things don't last beyond first and second year. So if you are just too much focused in this that you have to be a part of a relationship or something like that, then after a degree you get your degree and your ex collection too. So डोंट बी लाइक दैट. अगर कोई लाइफ में आना होगा पार्टनर तो आ जाएगा, अगर नहीं आ रहा तो ज़बरदस्ती मत करो कि भाई कोई तो चाहिए, बदनामी हो जाएगी या ऐसा कुछ थॉट मत लेके आना अपने दिमाग में. जस्ट चिल एंड फोकस ऑन योर लाइफ. इन सब चीज़ों के लिए बहुत टाइम पड़ा है अभी, ठीक है. वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज रिकॉर्ड योर कॉलेज मोमेंट्स, बिकॉज एक बार ये टाइम निकल गया तो ये टाइम दोबारा नहीं आने वाला. एंड इफ़ यू आर नॉट अ कैमरा पर्सन और तुम ज़्यादा पिक्चर्स नहीं लेते, वीडियोस नहीं लेते, आई गेट इट. आई एम ऑल्सो नॉट अ कैमरा पर्सन, बट नाउ आई एम रिकॉर्डिंग माई वीडियोज़, पोस्टिंग इट ऑनलाइन फॉर इंस्टाग्राम, यूट्यूब. एंड कुछ वीडियोज़ मैंने बस अपने पास रख रखी हैं, फ़ोटोज़ जो मेरी मेमोरीज़ हैं, जो मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. एंड ये चीज़ मैंने BCA में बहुत कम करी थी, सो या मैंने बहुत ज़्यादा शुरू कर दी है. सो रिकॉर्ड योर सेल्फ, take your photos, take your photos of your surrounding, your friends, because जब तुम जब तुम पास आउट हो जाओगे एंड तुम पीछे मुड़ के देखोगे अपने फ़ोन में गैलरी में एंड तुम्हें तुम्हारी फ़ोटोज़ इतनी मिलेंगी नहीं, या कुछ मोमेंट्स जो होते हैं वो तुम्हें याद नहीं रहते, फ़ोटोज़ देख के रिकॉल होते हैं, वो सब नहीं एक्सपीरियंस कर पाओगे फिर तुम, और वो बुरा लगता है सच में. सो रिकॉर्ड योर सेल्फ. बस ये लास्ट पॉइंट था.